نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 9 تک کا درس ہو چکا ہے. بالخصوص اس ماہ میں پیغام غوث اعظم کے عنوان سے دوسرا یا تیسرا یا چوتھا پارٹ ہے. چونکہ قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کے ترجمے میں توحید اور رسالت کی تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے منفرد شان کی قرآن کی تفسیر میری سمجھ اور مطالعہ کے مطابق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر الجیلانی، جس سے آپ 2-3 درسوں سے محظوظ ہو رہی ہے، بالخصوص مطالعہ جیلانی کے حوالے سے. ترجمے تو بہتوں نے کی ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ترجمہ مقام مقبولیت پر اس وقت پہنچتا ہے جب توحید اور رسالت کی ریئلٹی کو برقرار رکھا جائے. اپنے علم کا ڈھنڈورا پیٹنا اور مفسر اور عالم کہلانے کے لیے قرآن کا ترجمہ کرنا، یہ قرآن کے ترجمہ کے مطابق نہیں ہے، تقاضے کے مطابق نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک لفظ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ واقعی منشأ توحید اور منشأ رسالت کے مطابق ہے. شاید آپ کے پاس میری وہ کتاب پہنچی ہوگی 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ، جو 100 سے زیادہ پیج پر مشتمل ہے. صرف ترجمہ میں نے بسم اللہ کا کیا ہے، جو غوث پاک نے عربی میں ترجمہ کیا ہے میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا. نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طبقے، فرقے، سوسائٹی، کمیونٹی کو پیدا فرمایا جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن لاکھ بہت لاکھ بے حساب شکر و احسان ہے اس رب کا کہ ہمیں صحیح عقیدہ والا مسلمان گھر میں پیدا فرمایا. وہ چاہتا تو کسی بھی اس میں پیدا کر سکتا تھا، اس کی چاہت کے تحت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن جس اللہ نے جنت بنایا اس اللہ نے جنت کے لیے ہم کو پیدا فرمایا. یہ بڑی بات ہے، بڑی شرمندہ. دیکھیے آپ، نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، یہ سب کون ہے؟ آپ نے، ہم نے نہیں، وہی رب نے پیدا کیا. اور آج میں دیکھیے، آج کا بھی شداد وقت، نمرود وقت، فرعون وقت بالخصوص نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کو پیسے میں کمی تو ہو سکتی ہے، فائنینس میں کمزوری ہو سکتی ہے، جسمانی
طور پر کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن ایمان آپ کا اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ اتنا سکون دیتا ہے کہ کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توحید کو سلامت رکھے، ایمان کو سلامت رکھے، اسلام کو سلامت رکھے، مسلمان کے گھر میں ہونا سلامت رکھے، نسلوں کو سلامت رکھے۔ بے پناہ احسان ہے۔ آج آیت نمبر 10 پیغام غوث اعظم ہی کے عنوان سے بتاؤں کہ قرآن پاک کی تفسیر میں، ترجمے میں اور تعلیمات غوث اعظم میں کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنیے اور آیت نمبر 10 سنیے۔ اللہ سبحانہ و فرماتا ہے، جو کہ حالات حاضرہ معاشرے کے مطابق ہے، اور ہم میں سے جو کوئی اس میں ملوث ہے، خدا را دیکھیے، توبہ جو ہے نا، یہ مخلوق کے لیے نہیں کی جاتی، توبہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور توبہ سے بندہ مخلوق میں ظاہری طور پر نیچا دکھے بھی، مگر اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہو جاتا ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور توبہ کرنے والیوں کو مقام محبوبیت عطا کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے، محبوب بنا لیتا ہے اپنا۔ کون بندہ یا بندی نہیں چاہتی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے؟ ظاہر ہے جب تک وہ محبت آپ سے نہیں کرے گا، جب تک اس کی نظر کرم نہ ہوگی، تو آپ کو جنت کہاں سے ملے گی؟ اس کی جنت رضا میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آپ راضی کریں، اس کے مقبول و محبوب بندے اور بندی بنے۔ تو توبہ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ مخلوق کے لیے نہیں ہے، مخلوق کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا۔ اس لیے توبہ کرنے میں کبھی بھی جھجکنا نہیں، حیدرآباد کے حساب سے بولیں تو ہچکنا نہیں ایسے بولتے، کبھی بھی ہچکنا نہیں۔ جب بھی گناہ کا معاملہ آئے، چاہے کیسا بھی، چھوٹا سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اب سامنے والے مخلوق کو دیکھ کر کے نہ سوچے کہ یہ توبہ کرے تو پھر کیا بولتے، کیا کرتے، کیسا کرتے، مطلب یہ کہ ارے کمزور سمجھتے، ایزی لے لیتے، ایسا ویسا نہیں۔ خلق کی ظاہری ذلت کو قبول کر لیے اللہ کی عزت کے لیے، تو آپ بہت بڑی ہے آپ، اور امید ہے کہ وہی اللہ جس کے لیے آپ نے ظاہری ذلت کو اٹھایا ہے، وہی اللہ قوم میں آپ کو عزت عطا کر دے اور قوم میں ریسپیکٹڈ بنا دے۔ وہ قادر ہے۔ آپ سوچیں نظرہ، میں ذلت و عزت کا معیار نہ رکھتے ہوئے ایک عنوان دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے چلے تھے نبی کو مارنے کے لیے۔ اب آپ ذرا سی سوچیں، تلوار لے کر چلے تھے، اور تلوار لے کر، بلکہ تلوار خالی اٹھانے والے کو سچا موحد مسلمان صحیح العقیدہ کس نظر سے دیکھے گا؟ خالی اٹھانے والے کو۔ آج تو کوئی زبان دراز کرتا ہے، تو اب دیکھیے نا 29 کو تلنگانہ بند ہے، کس لیے بند ہے؟ یہ آپ کے ہمارے عزت کا مسئلہ نہیں ہے، عزت رسول کا مسئلہ ہے، ناموس محمدی کا مسئلہ ہے، رسول پاک کا ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور جب آپ کے پاس ایمان ہی، دیکھیے پیسہ نہ رہے تو کورونا میں بھی ہم لوگ 2 ٹائم ہی صحیح کھا کر کے زندہ رہے نہیں، لیکن ایمان نہیں گیا۔ کورونا میں لوگ مرے بھی تو لوگ مرے، ایمان نہیں گیا۔ ایمان ہی ہمارا اصل، ہماری اصل ہے، ہماری اساس، ہماری پونجی ہے۔ تو عزت کا جو معاملہ، حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھیے، 40 سال سے زیادہ عمر ہو چکی، لیکن ابھی تک نبی والے نہیں ہوئے، توحید والے نہیں ہوئے۔ کیا اللہ کے پاس عزت تھی؟ نہیں تھی۔ تلوار اٹھا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب نبی کی نگاہ کرم پڑ گئی تو ایمان لائے۔ اب پاسٹ کی ساری عمریں جو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو نبی والی عمر سے کہیں زیادہ ہے، 40 سال سے زیادہ تقریباً کم و بیش کاٹ لیا انہوں نے غیر اسلام میں، اور اس کے بعد 60-63 سال تقریباً خلفائے راشدین کی یہی عمر ہے، یعنی 20 سال یا 21-22-23 سال کی عمر پایا، نبی والی عمر پایا، بس۔
آپ اندازہ لگائیے परसेंटेज के हिसाब से 50% भी नहीं है, 1/3 कुछ ज्यादा. लेकिन आज पूरी कायनात में उमर इब्न खत्ताब की इज्जत का वो उन्वान है कि जब ईमान लाए तो कुरान की कई ऐसी आयतें हैं जो उमर इब्न खत्ताब के मशवरे के मुताबिक उतरी है. वाह, अल मवाफिक रायुहु लिल वह्य वस्सवाब, कि उमर इब्न खत्ताब का जो मशवरा और उसकी जो राय होती थी अल्लाह ताला उसे पसंद फरमाता था और हबीब को कहता था मेरे हबीब उमर की राय मुझे पसंद है, मैं उनके मुताबिक कुरान उतार रहा हूं. वाह, आप समझ रही हो, देखा आपने, सुबह कयामत तक वो इज्जत जो उमर इब्न खत्ताब को मिली परसेंटेज के हिसाब से उम्र कसीर गुजारने के बावजूद न मिली. नबी के कदम में आए, ईमान वाले हुए, नूर ईमान से सीने को मुनव्वर रखा, क्या इज्जत मिली. तमाम सहाबा ताबीन जितने भी सुबह कयामत तक अहले ईमान है, इज्जत का उन्वान अहले ईमान के लिए ईमान ही है. और आज जो आप अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह से कुछ पा रही है, उनकी बारगाह में नजराने मोहब्बत या अकीदत पेश कर रही है, क्या इसलिए कि वो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, अपने रिश्तेदारों में तो कितों को भूल गए हैं. दादा परदादा लकड़दादा कहां, सबको याद करते नहीं. लेकिन तकरीबन 900 साल से ज्यादा हो गया है रोज़े पाक को, 900 साल. आपसे हम पूछें आपकी परदादी लकड़दादी सबको याद करते आप सालाना? नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी को बराबर याद करते. वजह इनके कारनामे हैं. किसी भी शख्सियत को याद करने की वजह ईमान का स्ट्रांगनेस है, ईमान की खिदमात है, उनके कारनामे. इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हमारी तौहीद की हिफाजत के लिए, हमारे रिसालत की हिफाजत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, इस बुनियाद पर इनकी बारगाहों में नजराने अकीदत पेश किए जाते. और कोई मसला नहीं है, वरना हम सगे रिश्तेदारों को भूल गए, कारनामे नहीं है. तो याद करने का जो बेस होता है वो कारनामे होता है. यही से समझिएगा आप, स्ट्रांगनेस समझिएगा. खाली लोग 11वीं नियाज ये सब बोल करके आपको मिसकोट करते, मिसलीड करते. आप इससे जो है आप सतर्क रहिए, बाखबर रहिए. हम अपने खानदान को भूल चुके हैं, वजह कारनामे नहीं है. गौसे पाक को याद रखे हैं, वजह कारनामे है. तो याद की वजह कारनामे है, रिश्ते नहीं है. यही बात ध्यान में रखिएगा. कुछ लोग बस अरे वो भी नेक अमल करके, वो भी नमाज हज ज़कात करके अल्लाह के वली बने, तुम भी बन सकते हो. वजह वैसा नहीं है. तो हमारे दादा परदादा सब ऐसे ही, मतलब कोई मानने ना मानने का उन्वान ही नहीं होगा. ये बिल्कुल इस्लाम का इजी उन्वान है. नहीं, आपके इस्लाम का स्ट्रांगनेस ये है कि जिन्होंने खिदमत दीन किए हो, जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए, नामों से मुस्तफा की हिफाजत के लिए, दीन को जिंदगी बख्शने के लिए, मुहीद्दीन होने के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दीन की खिदमत पेश किए हो, उनको याद रखा जाए. और आप याद रखोगी तो फिर आपको भी याद रखा जाएगा. राबिया बसरिया कोई मर्द नहीं है, औरत है. क्या बात है, उनको याद रखा जाता है और उनका वसीला लिया जाता है. वाह, सिर्फ इसलिए कि उनके खिदमत हैं, उनकी तौहीद का स्ट्रांगनेस है, उनकी तालीमात और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान और शरीयत से कोई समझौता नहीं, इस बुनियाद पर उनको याद रखा जाए. बहनों, हमेशा याद रखना, दीन इस्लाम ही तुम्हें इज्जत दिया है और दीन इस्लाम ही इज्जत देगा और दीन इस्लाम की वजह से ही जन्नत जाओगी. ये दुनिया फानी है, जो आपने खा लिया वही खत्म. जो छोड़ देंगे आप, अभी डिटेल आ रहा है नंबर 11-12 में इसी सूरह निसा में कि वो बट जाएंगे. ऑटोमेटिक अल्लाह ताला बांट देगा. बाप मरा, मां मरी, बाप ने छोड़ा, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, ये सारे हिस्से फिक्स हैं. वो बाप मैदान महशर में कितना भी चीखे भी कि नहीं, किसको भी नहीं बांटना, तो अल्लाह पाक कहेगा नहीं, ये रूल्स मेरा है. तुमने दुनिया में जो खाया बस, अब जो छोड़ के आए हो वो तकसीम होगा ऑटोमेटिक. सोचा आपने, सारी जायदाद आपकी तकसीम हो जाएगी, आपका कुछ नहीं चलेगा. अल्लाह पाक की तरफ से वो फिक्स है. 1 रुपया बेटे को मिलेगा तो 8 आना बेटी को मिलेगा, ये फिक्स हो गया है. कुछ बोले या ना बोले, आप मरने वाले चले जाते, तो गया क्या आपके पास? जायदाद तकसीम हो गई तो गया क्या आपके पास? गया ईमान है,
गई शरीयत है, गई तौहीद और रिसालत है, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाना, यही गया। इसलिए इस चीज में कोई समझौता नहीं। मैंने एक मिसाल दिए हैं कि उम्र का जो हिस्सा नबी की याद में, अल्लाह की याद में, ईमान की दुनिया में गुजरे, वही हिस्सा असल है। जैसे कि उमर इब्न खत्ताब और दीगर साहबे किराम को भी आप देखें, 92 ईयर्स गुजर चुकी हजरत उरवा इब्न मसूद सकफी की शिर्क और कुफ्र में। 92 ईयर्स, बताइए उसके बाद कितना, 10 साल 5 साल जिए होंगे ज्यादा से ज्यादा, आप तहकीक करो तो 92 साल 92 ईयर्स कुफ्र और शिर्क में है। अब ईमान लाते हैं। अब आप बताइए, अगर पूरी उम्र का हिसाब लिया जाए, वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मगर अल्लाह पाक कहेगा नहीं, मेरे नबी पर तुमने ईमान लाया, मेरे कुरान को माना, मेरी शरीयत को माना, मुझे माना, तो मैं 92 ईयर्स का कोई हिसाब नहीं लूंगा। अब मानने के बाद जो किया तुमने वो हिसाब, क्या बात है। तो ईमान वाली जिंदगी ही असली जिंदगी है। यही है तालीमात गौसे आज़म, यही है पैगाम गौसे आज़म। आप दुनिया में ईमान के अलावा जितनी भी जिंदगी आप काट लें, झूठ में, चुगली में, बेतुके हरकतों में, बेनमाजी में, बेअमली में, जुल्म में, ये सब में काट लें, वो कोई उम्र नहीं है। और आपने 10 मिनट दरूद में जिंदगी काटी, 10 मिनट इशराक में, 10 मिनट तहज्जुद में, 10 मिनट सुभान अल्लाह की तस्बीह में काटी, वही असल उम्र है। गोया आपकी 60 साल 70 साल की उम्र की असली भी आज आपको मालूम हो गई पैगाम गौसे आज़म दुर्बान से, कि आपकी उम्र असली वही है जो आपने शरीयत के लिए काटी। आप बायोलॉजी सीखिए, केमिस्ट्री पढ़िए, तालीमात दुनियावी असली हासिल कीजिए, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल दीन के लिए करेंगी तो वही सही है। उसका इस्तेमाल शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करेंगे तो वही सही है। आज पूरा तेलंगाना बंद होने का ऐलान हो चुका। किसी को भी ये नहीं होना चाहिए एतराज, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये पैगंबरे अमन और शांति है। अमन और शांति का पैगाम लाने वाले नबी हैं, और अमन और शांति बिल्कुल खत्म है मुल्क से। इसलिए जरूरी है कि सब लोग एक तालीमात और एक पैगाम नबी पर आ जाएं, अमन ऑटोमेटिक कायम हो जाएगा। वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो सिर्फ हमारे घर के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। वो काफिर मुशरिक सबके लिए रहमत है, और ये रहमत का ही असर है जो अल्लाह पाक अजाब नहीं डाल रहा। वरना अल्लाह अगर चाहे तो फौरन नमरूद की तरह हलाक कर दे, फिरौन की तरह हलाक कर दे। कहना यह है कि दीन के लिए तुम्हारी उम्र, शरीयत के लिए तुम्हारी उम्र जो कटे वही असली उम्र है। आप जानती हो, आप अपने 18 साल के बेटे को उस वक्त जब के बेटे का बाप मौजूद ना हो और आप तन्हा घर में हो, क्या आप जॉब के लिए भी अपनी निगाह से दूर नहीं भेजेंगी? आप कोशिश ये करेंगी कि कोई छोटा मोटा ही जॉब सही मेरे बाजू में कर लो ताकि मेरी खिदमत हो सके, वरना मुझे कौन देखेगा। लेकिन आप अब्दुल कादिर जिलानी के पास आओ, आपको नजर आएगा कि सिर्फ एक जुमला कहा, मां मैं दीन सीखने जाना चाहता हूं, शरीयत सीखने जाना चाहता हूं, नाना की शरीयत, नाना की दीन को सीखने के लिए तमन्ना है। मां ने एक जुमला कहा, जाओ बेटा। अब आप बताइए, एक 18 साल का जवान बेटा, कोई आजू बाजू खिदमत करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अब्दुल कादिर की मां ने इजाजत दे दिया। आप पूछ सकती हो, बीबी आपने इजाजत क्यों दी, क्यों खिदमत, कौन खिदमत करेंगी आपकी, करेंगे आपके? तो आपका वही जवाब होगा कि हमने अल्लाह के लिए दिया है और अल्लाह हमारा करेगा। जब आप अल्लाह के लिए तन मन धन से अपनी जिंदगी और अपने वजूद को खर्च करेंगी, आल से, औलाद से, माल से, जान से, तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद फरमाएगा हर तरह से। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहि सलाम ने जब अपनी बीवी हाजरा को और अपने शीरखार बच्चे को ऐसी जगह छोड़ा जहां न खाना है न पानी है, हरियाली तक नहीं है, वादी गैर ज़ीज़रा बोलते उसको। गैर ज़ीज़रा बोले तो जहां पर ज़िराअत ही ना हो। ज़िराअत ना होने का मतलब पथरीली जमीन, ज़िराअत भी ना हो कि कम से कम क्लाइमेट तो अच्छा मिले, हरियाली भी नहीं हो, ऐसी जगह छोड़ दिया। हजरत हाजरा ने उस वक्त एक जुमला कहा था कि आप मुझे
और शीरखार बच्चे का तो लिहाज कीजिए, छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो आप मोहब्बत और ममता में चेहरा को पीछे न कर सके और ऐसे ही रुक करके बस फिर हजरत हाजरा ने 2 बार 3 बार पूछा। आखिरी में जब पूछा क्या अल्लाह का हुक्म है, तो उन्होंने उसी तरफ चेहरा करते हुए सर हिला दिया। और जब हजरत हाजरा ने आपके सर हिलाने को देखा तो कहा जाओ, जब अल्लाह का यह हुक्म है तो अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज व नासिर है। करोगी आप ऐसा? आप तो डाइवोर्स ले लोगी, तलाक ले लोगी अगर जरा सी वक्त को मतलब देर हो गई। है ऐसा ईमान आपका? वो इसलिए नहीं कहा था कि आप छोड़कर जा रहे हैं तो हम पर जुल्म है, नहीं, ईमान उनका स्ट्रांग था कि जिस अल्लाह ने इस्माइल को पैदा किया है वही अल्लाह इस्माइल के लिए असबाब और जराए जो दरकार होंगे वो अता करेगा। और हुआ भी ऐसा। और उसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मां ने जब इजाजत दिया तो वैसे पाक अपने बेटे को भेजे और अब बेटे ने उलूम दीनिया हासिल किया। आप क्या समझते हैं कि लंगर खानी, फातिहा खानी, नजर खानी यही सब है तालीमात गौसे आजम? नहीं, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना, दीन सीखना, दीन पढ़ना, शरीयत सीखना, शरीयत पढ़ना, यह है गौसे आजम की तालीम। 18 साल की उम्र में जब गए पूरी तालीमात जितनी भी इस्लामी उलूम व फनून है सब आपने हासिल किया। आप पैदाइशी वली भी है और मेहनती वली भी। इसको बोलते हैं वहाबी। वहाबी बोले तो गिफ्टेड और कसबी बोले तो मेहनत। तो आपको अल्लाह ने वलायत अता भी किया है और आपने मेहनत से भी अल्लाह की बारगाह से वलायत हासिल की है। ऐसा इल्म, ऐसी रियाजत, ऐसी इबादत, ऐसा ज़ुहद और तक़वा कि अल्लाह पाक ने इस मेहनत की भी वलायत आपको अता की। हर तरह की आपको वलायत और कुर्बत और महबूबियत खुदा आपको हासिल है। ये इसलिए नहीं है कि आज जैसा आप प्रमोट किया जा रहा है और आज जैसा आप समझ रही हैं अब्दुल कादिर जिलानी को, साल में आए एक मरतबा फातिहा कर लिए, यही है गौस पाक। और लोग इसी को सुन भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर है, इसीलिए इनका एक नाम है मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन अरबी वर्ड है। मुहियुद्दीन का माना होता है दीन को जिंदगी बख्शने वाले, दीन को हयात बख्शने वाले। दीन जब बिल्कुल मलिया मेट होने के करीब, कोई अमल करने वाला नहीं। अब आज देखिए क्या हाल है। फखर से मुरीद बोलते हैं फजर में सो गया था इसलिए नमाज नहीं पढ़ सका। अब्बा, और कल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का उन्वान देखो, अल्लाह के नेक बंदों का उन्वान देखो। एक दिन सिर्फ सो गए, फजर में सो गए, क्या शैतान ने सुला दिया। इतना रोए कि अल्लाह पाक ने उस रोने की बरकत से 70 फजर की नमाज का सवाब अता कर दिया उनके। अब दूसरे दिन जो है शैतान वक्त से पहले ही आकर के उठा दे रहा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज या किसी अल्लाह के वली ने कहा है तुम्हारा तो काम है सुलाना, जैसे तुमने कल सुला दिया, आज तुम पहले ही क्यों उठा रहे। तो शैतान ने यही कहा कहीं आज भी सुला दिया और तुम रोने लगे तो अल्लाह ताला कहीं एक की वजह से फिर 70 का सवाब न दे दे, इसलिए चल एक का ही सवाब तू ले ले जल्दी से जाकर। मैं कहना यह चाह रहा हूं ये है अल्लाह पाक के वली जो दीन को किसी भी हाल में अगर कमी बेशी का उन्वान आ भी जाए तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। और हम ऐसे काफिल धड़ल्ले अंदाज में बोल रहे हैं कि नमाज छूट गई। किसके लिए आप हम नमाज पढ़ते? अल्लाह के लिए। जब छूटी है तो फिर अल्लाह से गिड़गिड़ाइए ना। सूरह हदीद की आयत नंबर 16 में अल्लाह पाक एक आयत करीमा नाजिल फरमाता, जिस आयत करीमा से पहले का पस मंजर यह है कि कुछ सहाबे किराम, इब्तिदाई इस्लाम का दौर है, कुछ सहाबे किराम ऐसे ही बैठ करके गपशप फरमा रहे हैं अपनी शान के लेवल के मुताबिक, जो सहाबियत की शान है नहीं, तो ऐसे ही गपशप फरमा रहे हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सडनली गुजरे, उनके तरफ से तो सब चुप हो गए। वो उनके चेहरे पर हंसी थी,
नागवारी गुजरी, एक आयत होती सूरह हदीद की आयत नंबर 16 में, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह व मा नज़ला मिनल हक़। क्या अब भी ईमान वालों का वक्त नहीं आया है कि उनका दिल अल्लाह के लिए झुक जाए और हक की खातिर झुक जाए। अब सहाबे किराम के सामने जब ये आयत उतरी, सारे सहाबा कदम नाज़े मुस्तफा में गिरकर आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमारे लिए उतरी है। कहा तुम्हारा स्टेटस ये नहीं है कि तुम अपने वक्त को यूं ही गुजारो, तुम अहले ईमान हो, तुम्हारा एक एक सेकंड कीमती है। कहा या रसूल अल्लाह अब उसका कफारा क्या होगा जब हमारे लिए उतरी है। फरमाते हैं जितनी देर तक तुमने हंसी मजाक में अपने वक्त को गुजारे हो, उससे कहीं ज्यादा या कम से कम उतने देर तक अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ और रो। सारे सहाबा रोए। देखा आपने, उनके कदम के धूल के बराबर भी सुबह क़यामत तक कोई नहीं हो सकते, लेकिन देखिए आप, जब उन्हें तवज्जो दिलाई जाती तो अल्लाह के लिए किस तरह से गिड़गिड़ाते। कुरान की आयत समझ में आया? क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया? ऐसा लग रहा है कि अभी नाज़िल हुई आयत। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के लिए झुक जाए, हक की खातिर झुक जाए? ये अल्लाह के लिए और हक की खातिर झुकने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो अपनी उम्रों को समझें, अपने वक्तों को समझें। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया, क्या अबू हनीफा बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। हालांकि वो 2 साल नहीं 70 साल 60 साल गुजार चुके थे, यानी 2 साल से कहीं ज्यादा गुजार चुके थे। अब जाहिर है जब 2 साल का बच्चा इतना थोड़े अच्छे से बोलेगा, मगर कहते 2 साल। सामने वाले ने कहा हुजूर आप मजाक क्यों कर रहे हैं? फरमाया कि हाँ मेरी 2 साल जो हजरत इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजरी है वही असली उम्र है। देखा आपने, ये होता था अल्लाह के वलियों का मामला। वो अपनी उम्रों को अच्छे वक्त में, अच्छी सोहबत में, अच्छे लोगों की सोहबत में गुजारते। और आज आप 10 लोग बैठ जाइए तो पता नहीं, हाउ जी सर में दर्द है, पांव में दर्द है, ये हो गया है, वो हो गया, बस पूरी दुनिया के एकदम सारी बातें लेकर आ जाए। कभी कोई नहीं कि कुरान बोले, हदीस बोले, दरूद बोले, या ये बोले वो बोले, हमने ये सुना, हमने वो सुना। शरीयत और कुरान रहता ही नहीं। निकाह में जाओ वैसे ही, अरे अब तो कब्रिस्तान में भी गप्पे चल रही हैं। ऐसे सब गपशप चलते, अल्लाह अल्लाह खैर फरमाए। जहां हमें अकेले रहना है वहां भी अब डर नहीं लोगों को। कहने ये जा रहा हूं कि समझिए अब्दुल कादिर जिलानी के पैगाम को, पैगाम तौहीद को, पैगाम रिसालत को, ये टेम्पररी का उन्वान नहीं है, ये ज़ाब्ते की तकमील का उन्वान नहीं है। ये 2 जुमला समझे आप, साल में आपने बस मीठा फातिहा दिला दिए तो समझ गए आप सुबुकदोश हो गए। नहीं, उनके खिदमात हैं, उनके कारनामे हैं। बस एक वाकया अगर ये आप दिल में रख लेंगी ना तो समझ जाएंगी कि 18 साल का नौजवान अपनी तन्हा मां को छोड़ करके जा रहा है। मां भी खुश है, जाने वाला भी खुश है। कैसे? अल्लाह अल्लाह बताओ तुम। ओहो, इतनी सी अगर आपके अंदर फिक्र हो जाएगी ना तो अपनी तरह तो कोई बोलने वाली होंगी नहीं ना, औलाद आपकी ऐसा बोलेगी। आज ऐसे इजी लिया जा रहा है, कुछ भी एकदम कमेंट्स कर देते हैं अब्दुल कादिर जिलानी पे। हमारे रिश्तेदार नहीं है भैया, वो आले रसूल हैं, वो नबी की औलाद में से हैं, हसनी हुसैनी है, वो फातिमा की औलाद है, फातिमी है, वो रियल सैयद है। वो फातिमा के पेटे मुबारक से जो पैदा होने वाली नस्लें सुबह क़यामत तक हैं वही असली सैयद है। बाकी हजरत अली की दूसरी बीवी से जो भी औलाद हुई है उनको अलवी कहा जाएगा। असली सादात जो है हसनी हुसैनी, जो फातिमा के पेटे मुबारक से निकल करके हसन हुसैन से चले, ये है असली। और गौसे पाक वो असली रियल में एकदम सादात में से है। कितना अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे कि उनको नसब भी आला हासिल है और हसब दीन भी हासिल है। कहना यह है कि किसी को मानने का बेस रिश्ते नहीं होते हैं, नसब हसब नहीं होते हैं, बल्कि दीन का स्ट्रांगनेस होता है। आज आप अपने आप को नबी की बारगाह में क्यों झुकाई हुई है?
क्योंकि उन्होंने आपको पैगाम तौहीद और शराब तौहीद पिलाया है। वरना आप पता नहीं कौन सा शराब पीती, कौन सी दुनिया में रहती। आज देखिए ना एंकरों को, मैं जब भी बहुत तकलीफ होती है, और मैंने बहुत बार कई जरिए से यह बात पहुंचाई है। वो एक नाजिया इलाही नाम है, एडवोकेट है, बच्ची है, अभी 16, 17, 20 साल 25 साल की होगी, इतना खुलकर इस्लाम के खिलाफ बोल रही है। मैंने बड़े मतलब दुनियावी अदब के साथ कहा कि उसका नाम तो बदल लो, गैर इस्लामी रख लो, हमें कोई एतराज नहीं होगा, तुम जितना भी चीखना है चिल्लाओ। हमने तस्लीमा नसरीन को झील लिया है, वो भी बकी थी बहुत ज्यादा, लेकिन मुसलमान नाम रख करके जब बके तो मैं समझता हूं कि वो मुसलमान कैसी हो। बस ऐसी सब औरतों को आइडियल न बनाना मां। राबिया बसुरिया को आइडियल बनाओ, उम्मुल वरा को आइडियल बनाओ, उम्मुल मसाकीन को आइडियल बनाओ, अबू सालेह की बीवी गौसे पाक की मां को आइडियल बनाओ। फिर देखो आपके पेट से, आपकी नस्लों में इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन जन्म लेगा, यूसुफैन जन्म लेगा, शरफुद्दीन जन्म लेगा इंशाअल्लाह। ये कोई मखलूक, ये खालिक नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है। माएं जब अच्छी होंगी ना तो इंशाअल्लाह उसके पेट से जन्म लेने वाला भी अच्छा ही होगा। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों को, हम अपने वक्तों को, हम अपनी उम्रों को किसमें काटना चाहती हैं। मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती। नूरे मोहम्मदी को लेने के लिए आपको मालूम है हुजूर के वालिदे गिरामी का जो मसला राहों से चलते थे ना, तो औरतें अपनी तरफ लुभाती थी निकाह के लिए, लेकिन वो किस्मत हजरत आमना के पास, वो चमक रही थी तकदीर हजरत आमना की। ऐसी माएं होती थी कि जो अपने अंदर नूरे खुदा, महबूबियत खुदा, तौहीद परस्ती का कॉन्सेप्ट रखना चाहती थी और रहती थी, तो अल्लाह सुब्हानहू उनके बत्न से नबी वली, क्या बात है, पैदा फरमाता। अब कोई नबी नहीं आने वाला, लेकिन वली जरूर आएंगे और उसकी जिम्मेदारी आपके सर है। माएं सुधरेंगी, खवातीन सुधरेंगी। सुधरेंगी से मुराद खवातीन अपनी उम्रों को समझें, अपने वक्तों को समझें। जो वक्त आपका तौहीद के लिए कट रहा है, जिक्र इलाही के लिए कट रहा है, खुदा परस्ती के लिए कट रहा है, दरूद और सलाम के लिए कट रहा है, शरीयत के लिए कट रहा है, वही असली उम्र है। बाकी कोई उम्र आपकी नहीं, बेकार है, वो वेस्ट है वो। अब आपको इसी से फैसला करना है, पैगाम गौसे आजम के हवाले से, कि आप अपनी उम्र का जो कम हिस्सा आपको मिला है दीगर उम्मतियों के बनिस्बत, जिनको 400 500 साल मिलते और मिले हैं, आपको जो उम्र कम मिली है, इस कम में कितने अहम पहलू छुपे हुए हैं, उस अहम पहलू को आपको उजागर करना है। आप खाना बनाइए, दरूद पढ़िए, सलाम पढ़िए, मोबाइल को बाजू में रखकर सीरियल मत देखिए, वरना वो बेकार उम्र है आपकी। आप उसे समझ रही हैं कि अच्छी उम्र है, नहीं। आपका जो भी लम्हा, अरे शरीयत का स्ट्रांगनेस तो देखिए। आप बैतुल खला में दाखिल हो, उस दाखिल होने के वक्त भी शरीयत का दामन नहीं छोड़ा और कहा पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। बाप रे बाप। फिर जब आप बैतुल खला से निकलना चाहें तो आप अपने पांव को निकालते ही कहें गुफरानक। क्या बात है, गुफरानक का माना ए अल्लाह मुझे बख्श दे। क्या बात है। ऐसी छोटी इनवॉलंटरी वाली जगह में भी जब इस्लाम और शरीयत आपकी रहबरी कर रहा है, सोचे खाना पकाने के वक्त, बिस्तर पे सोते वक्त, ये सब तो वो मेहनत का उन्वान नहीं है। ऐसे वक्त के उन्वान में भी आपको इस्लाम ने दिए हैं, तालीम दिए हैं, शरीयत दी है, अमल करने की कसौटी दी है। तो आपका वो उम्र जो आप निकाह में गुजारती हैं, जो आप वलीमा में गुजारती हैं, जो आप सफर में गुजारती हैं या कहीं जाने में गुजारती हैं, क्या आपको इस्लाम नहीं दिया होगा? क्या इस्लाम ने नहीं कहा कि सफर करो तो ये दुआ पढ़ो? बहरहाल एक आज का ये बेखुसूस जो दर्स दिया गया, शरीयत में अपनी जिंदगी को गुजारिए, तौहीद परस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारिए, यही आपकी असली उम्र है, यही पैगाम गौसे आजम है।
اور جو عمر اس کے علاوہ گزرتی ہے وہ آپ کی عمر ہی نہیں ہے. میں نے کئی ایسی مثالیں آپ کو دے دی. عمر ابن خطاب کی مثال، عروہ ابن مسعود ثقفی کی مثال، کئی ایسی مثالیں آپ کو ہم نے دے دی. اب حضرت ہندا کو لے لیجئے نا، جب کلیجی چبائی وہ عمر نہیں تھی، اور جب ایمان لائی تو اصلی عمر ہے. کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاسٹ کو جو خراب ہے اچھا بھی بنانا چاہتی ہو تو آپ ریئل میں اپنی عمر کو ذکر خدا اور رسول میں، شریعت پرستی میں، خدا پرستی میں، اللہ اس کے رسول کے لیے آپ اپنی زندگی کو ہر لمحہ گزاریے. زبان آپ کے پاس ہے، ہاتھ آپ کے پاس ہے، فکر آپ کے پاس، شعور آپ کے پاس ہے. آپ سوئیے پڑھنے کے حوالے سے موبائل وغیرہ نہیں، ماں ہاتھ میں قرآن رکھیے. آپ میں چاہ کے بھی نہیں روک پا رہا ہوں، مگر میں کہوں گا ضرور کہ اصلی عمر جو ہے آپ کی وہ خدا اور رسول کی یاد والی عمر ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اس بات کو آپ کے دلوں میں اتار دے، مجھے بھی عمل کی توفیق